Good afternoon, dear learners. This is a guide to UGC NET JRF, Rashi Poddar, to guide you towards your goal. Yesterday, we had a very good session of MCQs. We did till question number 30. इसके बाद हमारे पास और भी questions है which we are supposed to see. Let's start. Our next question number 31. Select from among the following plays the one that best suits the description below. Alc Pandemies invited its author to write it. The play had communalism and its theme. This play was banned from the Deccan Herald Theatre Festival for dealing with a sensitive issue. The play, however, was produced by Playpen in Bangalore on July 1933. You have to identify which play it was. Read the statements again. Now let's see the options. Dance like a man, When there's a will, Final solutions, or the wisest fool on earth. एक बार अच्छे से ऑप्शंस देख लीजिए, फिर से स्टेटमेंट्स दिखा देते हैं इसके बाद. The statements are: Alc Pandemies invited its author to write it. The play had communalism at its themes. This play was banned from the Deccan Herald Theatre Festival for dealing with a sensitive issue. And the play, however, was produced by Playpen in Bangalore on July 1993. ये प्ले के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है. ये सारे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्ले है? You have to identify that. Dance like a man, When there's a will, Final solution, and the wisest fool on earth. And your option is C, Final solutions. Let's move on to our next question. Waiting for the Barbarians and Disgrace are novels by which South African Nobel laureate? You have to identify Waiting for the Barbarians and Disgrace are novels by which South African Nobel laureate. The options are Nadine Gordimer, James Maxwell Coetzee, Ethel Fogard, Ezekiel Maffei. Right answer is James Maxwell Coetzee, J.M. Coetzee. ये जो नॉवेल है इनका डिस्ग्रेस, इसमें आपको पोस्ट आर्पेथाइड का थीम देखने को मिलता है. पोस्ट आर्पेथाइड इट इज अ पर्टिकुलर टाइम जब आपका पावर रिलेशन जो है वो शिफ्ट हो जाता है. कौन सा पावर रिलेशन? अमंग ब्लैक्स एंड व्हाइट्स. Over time we have known, colonialism में we have seen कि whites जो है वो blacks के ऊपर रूल करते हैं, right? पोस्ट आर्पेथाइड में क्या होता है कि यहाँ पे blacks के पास पावर आ जाता है. They are the power holders now. और वो whites पे रूल करते हैं. तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है. इस स्टोरी में हमें एक प्रोफेसर की कहानी पता चलती है जो वाइट है और उसके साथ कैसे ब्लैक्स ओवरपावर करते हैं उसकी ये कहानी है. ये वाली स्टोरी आपको पढ़नी है. ये वाला नॉवेल पर्टिकुलर डिस्ग्रेस, इट इज एन इंपॉर्टेंट नॉवेल. कब पब्लिश हुआ है? 1999 में. एंड वेटिंग फॉर द बारबेरियंस इज पब्लिश्ड इन 1980. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द MLA style sheet, a compilation of scholarly conventions and directives, was first published in. MLA is a format जिसमें आपका रिसर्च पेपर लिखा जाता है. MLA के बहुत सारे एडिशंस है. नेट में स्पेसिफिकली 8th, 9th और 7th एडिशन से क्वेश्चंस देखे गए हैं. बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द 9th एडिशन. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि द MLA स्टाइल शीट जिसमें अ कंपाइलेशन ऑफ स्कॉलरली कन्वेंशन एंड डायरेक्टिव्स बताया हुआ है वो फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ है? 1951, 1957, 1962 और 1970. The correct answer is 1951.
Let's move to our next question. The Woods Dispatch of 1854 is also called. What is the alternative name of the Woods Dispatch? Magna Carta of English Education in India, Minute of Indian Education, British Council Declaration, or Indian Education Reform Act? Right answer is Magna Carta of English Education in India. कब आया वुड्स डिस्पैच? 1804 में. किसने लाया? चार्ल्स वुड ने. ये भी याद रखना है इस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में दैट इट वाज द फर्स्ट कमीशन टू टॉक अबाउट वुमेन्स एजुकेशन. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, एक बार हम लोग देख लेते हैं. ये जो आपका कमीशन है ये सर चार्ल्स वुड ने दिया था, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल यूके उस टाइम पे थे. इनको हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बुलाते थे. इस कमीशन का पर्पस क्या था? टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया emphasizing both western education and vernacular languages. ये बोथ वेस्टर्न एजुकेशन और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज को साथ में लेके चलने की बात कर रहा था. इसमें ये एक हायरार्कियल सिस्टम को डेवलप करने की बात करता है. प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में चलेंगे और हाई स्कूल से आपका वेस्टर्न लैंग्वेज विच इज इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा. इस टाइम पे वुड्स डिस्पैच में हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में. इसमें टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है. सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ग्रांट्स एंड एड की बात की गई थी, जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को सपोर्ट करेंगी, विच वॉज अ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव एट दैट टाइम. फीमेल एजुकेशन के बारे में बात हुई थी, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया है. मॉरल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी की बात की गई थी, यानी कि सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी. यहाँ पे इक्वल सबके लिए, कोई लो कास्ट कोई हाई कास्ट नहीं होगा. यहाँ पे रिलीजियस बायसनेस से फ्री रहेगा हमारा एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किट कैट क्लब, though ostensibly a social gathering, subtly influenced which aspect of early 18th century British life? The options are the development of Jacobite sympathies, the consolidation of Whig political power and intellectual reform, the advocacy for a return to monarchical absolutism, the domination of Tory ideologies in parliamentary debates. The right answer will be second option, the consolidation of big political power and intellectual reform. Kit Kat Club is our NFT topic. It is a topic from which most of the questions comes in our UGC NET. Most of the time the question comes from this. You have to know the members. आज आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप घर जाके देखो कि इसके मेंबर्स कौन थे किट कैट क्लब के, क्यों इसको फॉर्म किया गया था. Next question. Noam Chomsky's theory of universal grammar is primarily associated with. The options are behaviorist theory, structuralism, innatism, or communicative competence. यहाँ पे आपको बताना है कि नोम चॉम्स्की का ये जो थ्योरी है, यूनिवर्सल ग्रामर का थ्योरी, ये हम लोग लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं. इनका ये थ्योरी किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, कौन से दूसरे थ्योरी के साथ है? आई एम सो सॉरी. हाँ, तो किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज इनेटिज्म. इनेटिज्म का मतलब होता है इनेट और इनर एबिलिटी. एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. ये यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं? ये यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी में ये कहना चाहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन के समय में आपको एक छोटे बच्चे को लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है. अगर आप उसको नहीं भी सिखाओगे तो भी वो लैंग्वेज अडेप्ट करेगा, बिकॉज उसके अंदर एक इनेट एबिलिटी है, उसके पास एक यूनिवर्सल ग्रामर का नॉलेज है, इसीलिए वो ऑलरेडी इस चीज को अडेप्ट करता है और वो सीख जाता है. तो इसको कहते हैं इनेटिज्म की थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
For the general idea of the Canterbury Tales, Chaucer was indebted to. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैंटरबरी टेल्स का आइडिया जो है वो अडेप्टेशन कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने लिखा था? पेट्रार्क, दांते, बोकाशियो और वर्जिल. The correct option is Boccaccio's. Boccaccio's का Decameron. Next question. Identify the correctly matched poets and their works from the following. Nisimizical, Haim in Darkness, Kamla Das, The Sirens, R. Parthasarthi, Rough Passage, A.K. Ramanujan, The Striders. Second option is Nisimizical, The Striders, Kamla Das, Rough Passage, R. Parthasarthi, Hymns in Darkness, A.K. Ramanujan, The Siren. The third option is Nisimizical, The Siren, Kamla Das, Hymn in Darkness, R. Parthasarthi, The Striders, A.K. Ramanujan, Rough Passage. And the fourth option is Nisimizical, Rough Passage, Kamla Das, The Striders, R. Parthasarthi, The Striders, A.K. Ramanujan, Hymn in Darkness. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, मैच करेक्टली उनके राइटर्स के साथ उनका वर्क मैच्ड है. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. निसमिजिकल का हाइम इन डार्कनेस है, कमला दास का द साइरन, आर पार्थसारथी का रफ पैसेज एंड ए के रामानुजन का द स्ट्राइडर्स. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What kind of resource is JSTOR for literature researchers? हमारे पास एक वेबसाइट है JSTOR के नाम से. इट इज अ रिसर्च वेबसाइट फॉर पीपल जहां पे अलग अलग आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं. ये किस चीज के लिए एसोसिएटेड है? अ ग्रामर गाइड, अ डिक्शनरी, अ डिजिटल आर्काइव ऑफ स्कॉलरली जर्नल्स और अ साइटेशन स्टाइल मैनुअल. The correct option is C, a digital archive of scholarly journals. Moving towards our next question. A very good question. Who coined the term chutnification of English? ये term किसने coin किया है, chutnification of English? A. Salman Rushdie, B. Arundhati Roy, C. Vikram Seth और D. G.N. Devi. The correct answer is Salman Rushdie. किस वर्क में किया है? मिडनाइट चिल्ड्रन. अच्छा, मिडनाइट चिल्ड्रन में ये एक टेक्निक यूज करते हैं, मैजिक रियलिज्म. इसके ऊपर जाके आज आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करना है. सबसे पहला बात कि मैजिक रियलिज्म टर्म किसने पहली बार यूज किया? सलमान रुश्दी इज द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर, बट ये फर्स्ट टाइम किसने यूज किया है ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज गैब्रियल गार्शिया मार्केज. इनफैक्ट मिडनाइट चिल्ड्रन भी मैजिकल रियलिज्म के साथ ही एसोसिएटेड है. ये एक एनएफटी टॉपिक है, इस पे आपको घर जाके रीड करना है. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following poems by John Gower is written in Latin? A. Confessio Amantis, B. Speculum Medantis, C. Chronica Tripertia, D. None of the above. Okay, this is a bit confusing, I know, क्योंकि ऑप्शन में Confessio Amantis, Speculum Medantis भी है, but the right answer is Chronica Tripertia. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग. ये जो पोएम है इनका, ये गोवर का है और इट इज अ लैटिन पोएम इन 3 पार्ट्स, जो कि आपका लियोनाइन हेक्सामीटर में लिखा हुआ है. दैट रिकाउंट्स द इवेंट्स ऑफ रिचर्ड टूज रेन एंड हिज ओवरथ्रोन बाय हेनरी ऑफ बॉलिंगब्रुक. ये पोएम जो है अराउंड 1400 लिखा गया है. अब आप कंफ्यूज कहां पे हो? ये देखो, कन्फेसियो मांतिस जो है ये इंग्लिश में रिटन है और स्पेक्युलो मेदांतिस जो है ये एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में है. आपसे लैटिन पूछा गया था, सो लैटिन इज क्रॉनिका त्रिपेर्तिया. इनका दूसरा पोएम भी है वॉक्स क्लेमेंटिस, जो कि लैटिन में है, बट वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है यहां पे. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The collected poems of A.K. Ramanujan has been divided into 4 sections. Arrange them in their chronological order. The Striders, The Relation, Second Sight, The Black Hen. B. The Relations, The Striders, The Black Hen, Second Sight,
C. Second sight, the relations, the black hen, second sight. D. The black hen, second sight, the striders, the relations. The correct answer is option A. The striders, the relations, second sight, and the black hen. Moving towards our next question. The English Education Act was passed in which year? 1830, 1833, 1839, or 1835? The correct answer is 1835. Moving towards our next question. Which of the following statement about works from partition and Dalit literature is true? Okay, you have to identify कि कौन सा statement partition और Dalit literature को लेके सही लिखा हुआ है यहाँ पे. The first option is Khushwant Singh's Train to Pakistan presents the partition through a purely political lens, ignoring emotional or communal dimensions. B. Bama's Karuku is centered around the trauma of partition, focusing on cross-border violence and refugee camps. C. Sadat Hasan Manto Toba Tek Singh symbolically critiques the absurdity of partition through the metaphor of a lunatic asylum. D. Om Prakash Valmiki Juthan glorifies caste hierarchies and upholds traditional social structures in post-independence India. The correct answer is Sadat Hasan Manto's Toba Tek Singh symbolically critiques the absurdity of partition through the metaphor of a lunatic asylum. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहली बात यह है कि दलित लिटरेचर से अभी अपराइजिंग ट्रेंड देखे गए. काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं दलित और पार्टीशन लिटरेचर से. आपके ये वर्क्स पढ़े हुए होने चाहिए, इसका पब्लिकेशन डेट मालूम होना चाहिए. यहाँ पे ये सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है. ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका. बामा का कारुकू, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement about the Center for Contemporary Cultural Studies is true? A. CCCS was founded in 1964 at Cambridge University and was initially led by Raymond Williams. B. CCCS emphasized literary formalism over socio-political analysis in cultural text. C. Stuart Hall, a key figure in CCCS, argued that meaning is fixed at the point of media production. D. CCCS challenged traditional distinctions between high and low culture, analyzing popular culture as a site of ideological struggle. ये आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले तो CCCS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चरल स्टडीज का. ओवर टाइम इसमें क्वेश्चंस देखे गए हैं. कब स्टैब्लिश हुआ, किसने किया, लेटर फाउंडर कौन थे इसके, कौन कौन से राइटर्स एसोसिएटेड है इससे, क्या बात करता है, सारा चीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Moving towards our next question. Which of the following is not one of the 7 lamps described by John Ruskin in the 7 lamps of architecture? John Ruskin का ये वर्क है 7 lamps of architecture. आपको बताना है कि उन्होंने 7 lamps में से किसका नाम नहीं बताया है. The lamp of truth, the lamp of beauty, the lamp of strength or the lamp of harmony. The correct answer is the lamp of harmony. इन्होंने कौन कौन सा बताया है एक बार हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले ये वर्क इनका 1849 में पब्लिश हुआ है. 7 लैम्प्स जो ये डिस्क्राइब करते हैं, दे आर लैम्प्स ऑफ सैक्रिफाइस, द लैम्प ऑफ ट्रुथ, द लैम्प ऑफ पावर, द लैम्प ऑफ ब्यूटी, द लैम्प ऑफ लाइफ, द लैम्प ऑफ मेमोरी एंड द लैम्प ऑफ ओबीडियंस. Our next question is, identify the correct chronological order of these debut works of Indian English women writers. The God of Small Things, Arundhati Roy. The Glass Palace, Amitav Ghosh. Hulalabalu in the Guava Orchid, Kiran Desai. And Ladies Coop, Anita Nair. आपको आइडेंटिफाई, इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है कि कौन पहले पब्लिश हुआ कौन बाद में. The correct answer is answer C, 1, 3, 2, 4. ये सारे वर्क्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वर्क्स आपके बहुत ही
फेमस वर्क्स है। अमिताभ घोष इज नॉट एन इंग्लिश वुमेन राइटर, इंडियन इंग्लिश वुमेन राइटर, ये एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे टेक्निकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, बट स्टिल अगर आपको इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने आया तो आप कर सकते हो। अब ये सारे वर्क्स आपके पढ़े हुए होने चाहिए, ये सारे के सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है, ये राइटर्स इंपॉर्टेंट है आपके नेट के लिए। कब पब्लिश हुआ यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिकेशन डेट इसका, जो आपको याद होना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड थॉमस मोर यूटोपिया इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? थॉमस मूर, रैल्फ रॉबिन्सन, विलियम टिंडेल और रिचर्ड हरक्लूट? The correct option is Ralph Robinson. ये जो इनका वर्क है यूटोपिया, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन लैटिन। ये सब क्वेश्चंस बने हुए हैं यहाँ से नेट में। 1516 में ये लैटिन में लिखा गया था। थॉमस मूर्स का ये जो यूटोपिया, द फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी ऑफ यूटोपिया, कैरेक्टराइज्ड बाय कम्युनल प्रॉपर्टी, मिनिमल क्राइम एंड फोकस ऑन रीजन एंड हैप्पीनेस, वो रीजन एंड हैप्पीनेस की यहाँ पे बात करते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है रैल्फ रॉबिन्सन ने लाया था 1551 में और गिलबर्ट ब्रूनेट ने लाया था 1684 में। Now moving towards our next question. Every other stone is god or cousin. There is no crop other than God and God is harvested here around the year. ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस वर्क से, आपको ये बताना है। The options are Jayant Mahapatra's Konark, Arun Kolatkar's Jejuri, P. Lal's Being Very Simple God और R. Parthasastri Under Another Sky. These lines are from Arun Kolatkar's Jejuri. ये क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है कि जेजूरी एज अ फिक्शनल टाउन किसने क्रिएट किया है, तो अरुण कोलटकर ने। जेजूरी पोएम्स के लिए कौन फेमस है? अरुण कोलटकर फेमस है। जयंत महापात्रा के पोएम्स इंपॉर्टेंट है, जयंत महापात्रा एक इंपॉर्टेंट राइटर बनते हैं हमारे नेट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हमारा, हम देखते हैं Which of the following sequences of publication is correct in chronological order? पब्लिकेशन डेट के हिसाब से आपको ये इंडियन वर्क्स को क्रोनोलॉजी में सेट करना है, इंडियन इंग्लिश वर्क्स को पब्लिकेशन के हिसाब से सेट करने के साथ साथ आपको इनका राइटर का भी नाम पता होना चाहिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पहले अनटचेबल, देन ट्रेन टू पाकिस्तान, द गाइड एंड मिडनाइट चिल्ड्रन। अनटचेबल्स किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, द गाइड आर के नारायण एंड मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। इनका पब्लिकेशन डेट यहां दिया हुआ है जो कि आपको याद होना चाहिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी सो पेशेंटली। I would like to end my session here. Thank you.